This conference will now be recorded. सुरा वंदित लोके जरारुक भय मृत्यु दाता ईशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं दधतमृतघटं चारुदोर्भिष्टदुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्रं शुक्रविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिक्तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलं प्रौढदावाग्निलं प्रौढदावा Yes, thank you so much. Good afternoon, all. A very warm welcome to all the participants in today's free lecture on COVID-19 and its experiences through Ayurvedic management by Dr. Bhalchandra Mahamuni sir. Let me introduce Ayurveda first. Ayurveda is the web learning Ayurveda academy which has conducted lecture series topics such as Panchakarma, Garbha Sanskar, Adistri, that is advanced gynecological series, also in infertility. Also conducted various series on Vaishajyam, that is Ayurvedic medicine preparations, and Kalpabhyas, and many more. The enhancement of clinical knowledge in Ayurveda and to boost their clinical practices management. So today we are conducting another free lecture, that is 29th free lecture by another eminent speaker, Dr. Bhalchandra Mahamuni sir. Before starting today's session, I would request all the delegates to kindly turn off their mics and cameras on mute mode to avoid the or queries regarding today's session. They can put it in the chat box, which will be addressed at the end of the meeting. Now I take this an opportunity to introduce our today's speaker. Our today's speaker, Dr. Bhalchandra Mahamuni sir, has completed his MD in Ayurveda from Kai Chikitsa from Tilak Ayurveda Mahavidyalaya in 2010. Sir is practicing Ayurveda since last 10 years. Sir has written various articles in Srujan Chikitsa, Ayurveda, Ayurveda subjects. Sir has also done presentations in national and international seminars on various subjects like Shaka Koshtagati, autoimmune disorders, liver cirrhosis, also on Pranavasrutas in 2013. Sir is having experience to manage critical cases by Ayurvedic treatments. Sir has dealt with various emergency cases through management of Ayurveda. Sir is currently working as a co-founder for Paraspecialty Clinics in Mumbai, which has got various branches at Vashi, Dadar, Thane, and Panvel. So I hereby welcome
Our today's speaker, Dr. Bhalchandra Mahamuni sir, and I request sir to kindly start his session. Over Mahamuni sir. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. I am very thankful for this platform. It is a very wonderful platform for the Ayurvedic learners and Ayurvedic experts to put their view in on various different occasions. So, are all are comfortable in Hindi language? Okay, for a little bit explanation of Ayurvedic concepts, I will use Hindi language further. Yes, sir. Yes. हम Sure. सभी ने कोविड-19 इसके बारे में बहुत अच्छा आयुर्वेदिक सेक्टर्स में काम हो रहा है, काम आगे बढ़ रहा है। पिछले 1-1.5 साल से कुछ काम बहुत हद तक इस प्रकार आया है कि हम माइल्ड और मॉडरेट केसेस में बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से हर वैद्य इस पेशेंट के ट्रीटमेंट करके अच्छे रिजल्ट्स पा रहा है। अभी कोविड-19 का जो सिनारियो चल रहा है, यानी अभी थोड़ा सेकंड वेव का जो ये था, सेकंड वेव थोड़ा कम हो गया है। अभी लॉकडाउन बाद में खुल रहा है, ऑल सिचुएशन आर गोइंग नॉर्मल, but still in COVID-19 the scenario is that no any prominent treatment that is going on, यानी कुछ भी COVID-19 के लिए कुछ ऐसी ठोस चिकित्सा उपक्रम एलोपैथी के पास या कोई अन्य पैथी के पास अभी नहीं है। तो इसके बारे में बहुत सारा काम हो रहा है। उसमें क्रिटिकल केयर केसेस में, यानी जो पेशेंट्स क्रिटिकली इल होते हैं, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, जो हाइपोक्सिक होते हैं और जिनकी डेथ होती है, ऐसे पेशेंट्स के कुछ अनुभव मैं यहाँ पे आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। हमने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स आयुर्वेदिक वैद्य हर अक्रॉस ऑल द इंडिया ट्रीट कर रहे हैं क्रिटिकल, और वो अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगले वेव से अगले पैंडेमिक के कुछ कंसर्न में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक वैद्यों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। उस हिसाब से हमें सब आयुर्वेदिक वैद्यों को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर अगली वेव्स आती है या अगले कुछ समय में ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन बनती है, तो उस वक्त हम सभी आयुर्वेदिक वैद्यों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हमारे पास के जो पेशेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। अभी माइल्ड और मॉडरेट और होम क्वारंटाइन केसेस में बहुत दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन क्रिटिकल मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट लुकआउट रहता है कि क्योंकि पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसके हिसाब से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में आपको बता रहा हूं कि जो मैंने यूज किए हैं। सबसे पहले जो भी आयुर्वेद सीखा है मैंने, वो मेरे गुरुजन थे। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से एज अ शिष्यवत नहीं तो पुत्रवत मेरे को आयुर्वेद के कंसेप्ट सिखाए, जिसमें पांचभौतिक चिकित्सा का बेसिक कंसेप्ट्स मैंने वैद्य सुयोग दांडेकर जो सतारा में उनसे सीखा। वैद्य सुनील इनामदार सर है, जिन्होंने मेरे को रसक बहिषज्य कल्प और सहस्त्र योग का ज्ञान दिया और बहुत सारे पेशेंट्स ट्रीट करने को कैसे करते हैं क्रिटिकल पेशेंट्स, इसमें मेरे को गाइडेंस किया। डॉक्टर वैद्य संतोष माडिक है, जिन्होंने मेरे को पंचकर्म चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छे सिखाए बातें। वैद्य लेट विलास नानल सर जो है, जो तिलक आयुर्वेद में हम उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। मेरे यूजी के कॉलेज के मोहन तांबे सर है, जिन्होंने मेरे को एलोपैथिक और आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन के बारे में सिखाया। और वैद्य नरेंद्र पेंचे सर है, जिन्होंने मेरे को आवृत्तवात और उनके मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छा सिखाया। इन वैद्यों के सिखाने के साथ मैं इनके तरफ से बहुत अच्छी बातें सीख पाया हूँ। जो इंस्टीट्यूट्स है जिनमें मैंने बहुत सारे पेशेंट्स किए, उसमें ताराचंद हॉस्पिटल जो तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय का चरक वार्ड है, वहां पे हमें एज अ रेसिडेंट इमरजेंसी पेशेंट्स मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जहाँ पे हमने बहुत सारे पेशेंट थे जो इमरजेंसी थे। इसमें हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा का बहुत
उपयोग करने को हमें मिला। और वो पेशेंट्स हमारे कंसल्टेंट्स जो थे वो बोलते थे कि आप उनको मैनेज कीजिए इमरजेंसीज, तो वहां पे अच्छा खासा हमको अनुभव प्राप्त हुआ। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में जहां वेंटिलेटरी सपोर्ट्स रहता है, ऐसे पेशेंट्स को सह्याद्री हॉस्पिटल्स में मेरे को कुछ दिन तक काम करने को मिला, तो वहां पे भी मैंने जो वेंटिलेटरी मैनेजमेंट होते हैं और सीरियस पेशेंट्स है उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी उन डॉक्टरों से एलोपैथिक कंसल्ट के बारे में, एलोपैथिक डिसीज मैनेजमेंट के बारे में मुझे मिल गई। तो इसके इसके हिसाब से मैं कुछ हद तक इस कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट्स में काम कर रहा हूँ। अभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो का बहुत आवाज ठीक तरह से नहीं आता है, इसलिए वीडियो स्किप कर रहा हूँ। लेकिन हम एक केस लेते हैं कि सेकंड वेव में जो सिचुएशन था, आप सबको पता है कि ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से बहुत सारी डेथ हो गई है। उसके बाद बेड अनअवेलेबिलिटी के हिसाब से बहुत डेथ हो गई है। उसके साथ रॉन्ग ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन इन अनअवेलेबिलिटी, जो भी एलोपैथिक मेडिसिन थे उनके अवेलेबिलिटी से बहुत डेथ हो गई है। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में बहुत कुछ हद तक क्लियरिटी नहीं होने के बाद बहुत डेथ्स हो चुकी है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो रहे हैं डिसीज में, जैसे म्यूकोरमाइकोसिस है, इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो रहे हैं। और इस सब सिनारियों में एक केस है, दिस इज अ केस, इसमें जो पेशेंट है, शी इज एन 75-year lady. She lives in one village near Satara district. The situation of the patient was that she was detected COVID positive in 5th of May 2021. Last month में 5 तारीख को उनको कोविड रिपोर्ट उनका पॉजिटिव आया। उसके बाद उनको सीटी किया गया। सीटी एचआरसीटी में उनका कोविड का स्कोर था 20 और पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन था, ड्रॉप होने लगा था। तो उनके जो रिलेटिव है उन्होंने बोला कि हमको उसको हॉस्पिटलाइज करना है, लेकिन 17 डिस्ट्रिक्ट में किसी ने भी उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया, क्योंकि उनको बताया गया था कि पेशेंट कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल एंड यू हैव टू एडमिट दिस पेशेंट इन दैट हॉस्पिटल वेयर देयर इज अ वेंटिलेटरी मैनेजमेंट, यानी वेंटिलेटर जहां पे अवेलेबल है वहां पे उनको एडमिट करना है। लेकिन उस वक्त 10 तारीख के बीच में पूरे 17 डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी वेंटिलेटरी सपोर्ट का हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने उस वक्त उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे रख के घर पे ही रखा गया था। तो इस पेशेंट में हम देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट मैनेजमेंट की गई। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट वाज ऐसा था कि मेरे को पेशेंट है तो मेरे एम्प्लॉय के थ्रू मेरे कॉन्टेक्ट में आया। जब पेशेंट का जो पोजीशन था उसमें ऐसा था कि उसको ब्रेथलेसनेस था, ऑन वॉकिंग ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता था, रेस्टलेसनेस और ड्राई कफ। जो भी ऑक्सीजन सैचुरेशन था पेशेंट का वो बिटवीन 66% to 7% विदाउट ऑक्सीजन था एंड 80 to 82% तक ऑन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विद 5 लीटर O2, यानी जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है उनका मैक्सिमम ऑक्सीजन जो उससे आता है वो 5 लीटर तक आता है। तो उनका सैचुरेशन 80 अराउंड रह रहा था। जो भी मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स थे उन्होंने मैंने बताया वैसा हिस्ट्री था कि उनको एडमिट करने को बोला। जो पेशेंट्स के जो इन्वेस्टिगेशंस थे उसमें जो एचआरसीटी स्कोर था उनका 20 आउट ऑफ 25 था, कोरैट 6 था। अप्रोक्सीमेटली 80% लंग इन्वॉल्व में है बायलेटरल वायरल न्यूमोनाइटिस से। उनके जो कोविड मार्कर्स थे जो हम जनरली करते हैं कोविड में, सीआरपी, एलडीएचडी, डायमर फेरेटिन, उसमें एलडीएच 692 था और एचजीपीटी लेवल्स थे वो 73 थे। एचजीओटी लेवल्स जो थे वो 100 अराउंड थे। ईएसआर था वो 30 mm तक था और सीबीसी ल्यूकोपेनिया एक साइन होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट लेस रह रहा था। ऐसी सिचुएशन उस पेशेंट्स की थी। एक्सरे उनका 7 तारीख का हमारे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी मॉडर्न कंसल्टेंट है, एमबीबीएस कंसल्टेंट है, कोरेगांव नाम का एक विलेज है नियर बाय इनके रेसिडेंस, तो वहां पे उस डॉक्टर ने उनको टैबलेट फैमिफ्लू दिया था जो उनका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। उन्नाकोर्टिल उनको 40 मिलीग्राम तक दे दिया था और कुछ सप्लीमेंट्स उनको चालू थी। ये छोड़ के बाकी कुछ दवाइयां उनको नहीं चालू थी, सिर्फ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट पे रखा था। उसके बाद पेशेंट हमारे पास अप्रोच हुआ
और पेशेंट के जो रिलेटिव थे उन्होंने पूछा कि हम कुछ कर सकते हैं क्या इस पेशेंट में। तो मैंने बोला कि हम इस पेशेंट में हमारे ट्रीटमेंट का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे रिजल्ट आता है उसके बाद डिसाइड करते हैं। तब तक मैंने उनको बोला कि अगर कुछ हॉस्पिटल्स मिलते हैं तो आप देखते रहिए, लेकिन हम ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद 11 ऑफ मई को हमने उनको ट्रीटमेंट चालू किया। उस ट्रीटमेंट में हमने एक फॉर्मुलेशंस कुछ 3 बनाए थे। उसमें कोविड-1 नाम का एक फॉर्मुलेशंस था, जो अभी राफेल कैप्सूल्स के नाम से एफडीए अप्रूव भी है। वो 5 ग्राम इस मात्रा में पर डे दिया गया। उसके साथ कोविड-2 था, वो 2 ग्राम पर डे दिया गया, और कोविड-3 नाम का फॉर्मुलेशंस था, ये हमने 5 ग्राम पर डे दिया। यानी टोटल 12 ग्राम पर डे उसको हमारी पाउडर के स्वरूप में दवाई जा रही थी। और उसके साथ रुद्रामृत सिरप नाम का एक सिरप है, जो भी हमने एफडीए अप्रूव कर लिया है, वो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार ऐसी दवाई का हमने प्लानिंग किया था इस केस में। उसके साथ जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट था पेशेंट के पास, उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ही अवेलेबल हो पाए थे, तो उसके लिए हमने 5 लीटर का जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर था वो दे दिया था। ऑक्सीजन उनका 80 अराउंड रह रहा था, ड्रॉप जो हो रहा था वो 70 अराउंड ड्रॉप हो रहा था। तो उसके लिए ऑक्सीजन लेवल्स कुछ इंक्रीज होने के लिए एक मिक्सचर आयुर्वेदिक सुवर्ण कल्पों का हमने चालू किया। मैंने उनसे फोन पे बात की कि मैंने उन्हें बताया कि 4-5 सुवर्ण कल्प है, ये आपके नजदीक से आयुर्वेदिक दुकान से शॉप से लेके आइए, और मैं बताता हूँ ऐसे क्वांटिटी में मिक्स करके उनको चालू कीजिए। यानी 1 आवरली हमने 200 मिलीग्राम क्वांटिटी में उनको दिन में 6 से 8 बार देना चालू किया। तो ये इनिशियल मैनेजमेंट हमने 11 तारीख को उनको स्टार्ट की। इस मैनेजमेंट में एक ऐसी बात हुई थी कि पेशेंट के जो रिलेटिव थे वो भी कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन वो असिम्टोमेटिक थे और होम क्वारंटाइन थे। इसलिए उस पेशेंट को दवाई देना, उनका मॉनिटरिंग करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान बन गया। फॉर द फर्स्ट 4 डेज हमने वो सेम ट्रीटमेंट इन पेशेंट को दी थी, और डेली उनका मॉनिटरिंग चल रहा था, जिसमें उनका साइन एंड सिम्टम्स के लिए मॉनिटरिंग था। उसके साथ SpO2, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इसका मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन हमारा चल रहा था। उसके साथ जो भी डेली उनके अपडेट्स है वो ले रहे थे। ऑक्सीजन उनका SpO2 बिटवीन 75 to 96 जैसे हमने चाटन चालू किया, तो उसके दौरान उनका ऑक्सीजन वेरिएबल 75 to 96 तक हो रहा था। एवरेज उनका जो ऑक्सीजन है तो वो 85% अराउंड ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा था। पल्स भी नॉर्मल था। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट का एक बात रहता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कुछ देर तक उनको बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो मशीन गर्म होता है। इसलिए हमने उनको बोला कि सेकंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आप अरेंज करो। उसके हिसाब से उन्होंने सेकंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अरेंज किया। 15 तारीख को हमने रिव्यू लिया, यानी 15 तारीख को हमने उनका रिव्यू फॉलोअप लिया, जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमने किए थे। उस इन्वेस्टिगेशंस में जो LDH रेंज था वो LDH रिपीट किया, उसमें 487, यानी LDH का जो वैल्यू था वो 692 था, वो कम हो गया, 487 हो गया। और उनका ना एक्सरे रिपीट करवा लिया, है ना। हमको थोड़ा सा एनालाइज करना था कि एक्सरे में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या। तो आफ्टर 3 days द एक्सरे शोज इंप्रूवमेंट इन देयर निमोनिया। तो हेजीनेस था वो कम हो गया था। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट स्टेडीली 85 तक रह रहा था। जो ऑक्सीजन था वो 70 पर ड्रॉप हो रहा था, 70 तक ड्रॉप हो रहा था, वो अराउंड 80 तक ड्रॉप हो रहा था। यानी ड्रॉपिंग लेवल जो था वो उनमें कम हो गया था। ये जो एक्सरेस है, ये 2 एक्सरे है। ये जो पहला एक्सरे है वो 7 तारीख का एक्सरे है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सारा हेजीनेस उस पेशेंट में है। और 1 तारीख का है, 15 तारीख का है। 15 तारीख में वहां पे बहुत अच्छी तरह से उनमें इंप्रूवमेंट इस एक्सरे में दिखाई दे रही है। यानी जो हेजीनेस था वो कम हो गया था। पेशेंट क्लिनिकली अच्छी तरह से स्टेबल हो रहा था। जो मेडिसिन ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हमने 2-3 दिन लगातार घंटे में दी थी, वो रिड्यूस करके 3 आवरली उनको कर दिया था। यानी जो मेडिसिन ऑक्सीजन स्टेबलाइज करने के लिए जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किया वो हमने रिड्यूस कर दिया। पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल था, माइल्ड कफ था, ब्रेथलेसनेस उनका बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस हो गया था। आफ्टर 2 days
ये हमने ट्रीटमेंट और 2 डेज कंटिन्यू रखा। आफ्टर 2 डेज पेशेंट सैचुरेशन स्टार्टेड अबव 90। उसके बाद पेशेंट का सैचुरेशन था वो अबव 90 होने लगा। इस बीच में हमने जो मॉडर्न कंसल्टेंट थे, एलोपैथिक कंसल्टेंट, उनका भी ओपिनियन चालू रखा क्योंकि वो पेशेंट के फैमिली डॉक्टर थे। तो मैंने बोला कि उनका भी आप एक ओपिनियन ले लीजिए कि उनका ओपिनियन के हिसाब से पेशेंट क्या है सिचुएशन, वो हमको बताएंगे। तो फर्स्टली ही सरप्राइज कि हाउ द पेशेंट सस्टेन विदाउट इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट, यानी उनको सरप्राइज हुआ कि पेशेंट बिना इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट के कैसे सर्वाइव हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनको चालू है। देन ही सेज लेट्स, आप कंटिन्यू रखिए, उसका इस्तेमाल हो रहा है, यानी उनका उसकी उपयोगिता आपके पेशेंट में हो रही है। फिर उन्होंने जो ओमना कार्टिल था उसका डोज थोड़ा सा कम कर दिया और कुछ टैबलेट्स उन्होंने चेंज की, जैसे एंटीकोएगुलेंट टैबलेट वगैरह चालू रखा। उसके बाद बोले कि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलने दीजिए, अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन का बेड अवेलेबल होता है तो हॉस्पिटलाइज हो जाइए। लेकिन पेशेंट के जो रिलेटिव थे वो बोले कि अभी तो पेशेंट हमारा फिलहाल स्टेबल है और हॉस्पिटलाइज करने के बाद वहां पे हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम उनको घर पर ही रखना चाहते हैं और यहाँ पर भी ट्रीटमेंट देंगे। तो उसके साथ घर पे ट्रीटमेंट होने लगी। ऑन द डे ऑफ 20th May 2021 SpO2 लेवल उनका 98 to 97 विद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट रहने लगा। उसके बाद हमने उनको रसायन के तौर पे अमृत प्राश घृत और कुष्मांड रसायन 1 ग्राम 2 times a day, 1 ग्राम 2 times a day की मात्रा में चालू किया और उसके साथ उनका ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होने लगा। ऑन 25th May को पेशेंट का ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रिमेन कंसिस्टेंटली अबव 90%। ऑक्सीजन मिक्सर रिड्यूस टू ओडी, यानी जो ऑक्सीजन का मिक्सर 3 आवरली था वो ओडी रिड्यूस किया और एसओएस देने को बोला। जब ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाए तब वो मिक्सर थोड़ा सा आप उनको दीजिए। जो भी कोविड 1, 2, 3 के डोसेस थे जो 5-5 ग्राम चालू थे वो भी कम कर दिए, 2-2 ग्राम पर लाए और कोविड 2 का जो डोज था वो भी रिड्यूस कर दिया। ऐसी थोड़ी सी रिड्यूस मेडिसिन की ट्रीटमेंट दी। ऑन 20th डे यानी 25 से 28 तारीख को उसको ऑफ O2 ट्रायल देना चालू कर दिया और 28 तारीख को बहुत अच्छी तरह से पेशेंट ऑफ O2 रहने लगा। उसके बाद हमने सिर्फ उनको कुष्मांड रसायन और अमृत प्राश घृत ये 2 रसायन द्रव्य हमारे दिए और मॉडर्न कंसल्टेंट ने में उनके सब मेडिसिन कम करके परफिनिक्स टैबलेट को चालू कर दिया और ओमना कार्टिल भी बहुत कम डोज में उनको दी जाती थी। उसके बाद अभी तक पेशेंट को कुछ भी पोस्ट कोविड भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं, यानी ये एक ऐसा पेशेंट था कि जहाँ पे आपको वेंटिलेटरी सपोर्ट लगेगा, क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट लगेगा, फिर भी वो पेशेंट होम बेस यानी घर में हमने थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके उसको ठीक किया। ये सिचुएशन इसलिए आई कि उस वक्त वहां पे बेड अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो एक पहला केस है। अभी इस केस के बारे में जो भी उसके बिहाइंड का जो कंसेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट हमने ये जो दवाइयां है वो सभी पेशेंट्स में यूज की, यानी पिछले 1 साल से हम ये पेशेंट्स कर रहे हैं क्रिटिकल के पेशेंट्स, उनमें हमने सब में एक ही दवाई का कॉम्बिनेशन यूज किया और उनके सिर्फ डोसेजेस मैनेज किया, यानी कुछ डोसेज के चेंजेस के बगैर हमने दवाइयां चेंज नहीं की है। तो उस मेडिसिन का पीछे का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत समझ लेना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिद्धांत समझ जाए तो मेडिसिन हम उस तरह की आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन रहती है, आपके ओपीडीज में हर एक के ओपीडीज में रहती है, तो उस सिद्धांत के अनुसार उस मेडिसिन का यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे आयुर्वेदिक कंसेप्ट के बारे में बहुत सारे वैद्य बोलते हैं कि हम उसका एक कुछ व्याधि में अंतर्भाव करें, कुछ बोलते हैं उनका एक श्वसनक सन्निपात बोले इसको, कुछ बोलते हैं उसको क्षयज कास बोले, कुछ बोलते हैं उनको सन्निपातिक अभिसंगत ज्वर बोले। तो कोविड का कोई भी एक डिसीज में इंक्लूजन करना और एक डिसीज के प्रिंसिपल से ट्रीटमेंट करना ये संभव नहीं हो पाता है। जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस वक्त हमें ध्यान में आता है कोई भी एक व्याधि की चिकित्सा जो बताई गई है वो सक्सेस नहीं होती। तो ज्वर कासात संजायते क्षय, यानी ज्वर और कास की चिकित्सा अगर ठीक तरह से की नहीं जाती है तो उसका रूपांतरण क्षय व्याधि में होता है, ऐसा आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है। तो जिनको भी कोविड के क्रिटिकल पेशेंट्स मैनेज करने हैं उनमें उनको आयुर्वेदिक चरक संहिता के ये अध्याय पढ़ लेना बहुत जरूरी है। जिसमें ज्वर है
रक्तपित्त है, श्वास का सिक्का है, राजयक्ष्मा और क्षतक्षीण। ये अध्याय बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जरूरत है। जो भी क्रिटिकल पेशेंट है उसमें आवृत्तवात की चिकित्सा करनी पड़ती है। जनपदोपदंश, अवयव निर्मित और धात्वाग्नि, इनका बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी तरह से हम पेशेंट मैनेज कर सकते हैं। तो जो कोविड-19 का जो प्रेजेंटेशन है हमारे सामने वो है अभिसंगत हेतु है जनपदोध्वंस का। दोष प्राधान्यता में वात कफ प्रधान सन्निपात है और उसके जो अवस्थाएं है उस अवस्था में जो उत्तान अवस्था आती है, उस उत्तान अवस्था में जो धातुएं दुष्ट रहती है उसमें रस रक्त मांस मेद इस यहाँ तक की धातुएं दुष्ट होती है। जो भी गंभीर अवस्था में पेशेंट चले जाते हैं उनमें उत्तरोत्तर धातुओं की दुष्टि होने लगती है, जैसे मज्जा शुक्र है और ओज है। जो भी स्रोतस है, स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पेशेंट में हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कुछ पेशेंट माइल्ड रहते हैं, कुछ पेशेंट मॉडरेट रहते हैं और कुछ पेशेंट्स एकदम क्रिटिकल बन जाते हैं, सीवियरली उनको कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। तो उनमें जो भी पेशेंट माइल्ड है, वो माइल्ड पेशेंट्स में उनमें प्राणवह, रसवह और अन्नवह, इन 3 स्रोतों की दुष्टि प्राधान्य से होती है और इन स्रोतों की दुष्टि की दवाइयां हमने दी जाती है। तो ये माइल्ड और मॉडरेट केसेस हम ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें होम क्वारंटाइन पेशेंट्स रहते हैं या माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम के पेशेंट्स आयुर्वेदिक दवाई से ट्रीट होते हैं। जो भी पेशेंट गंभीर बनते हैं, सीवियर केसेस बनते हैं, उनमें प्राण, अन्न, रसवह स्रोतस के साथ उदकवह, रक्तवह, मांसवह और मेदवह, इन स्रोतों की दुष्टि आती है। जब इन सभी स्रोतों की दुष्टि होती है तब जाके वो पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाता है। यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कोई भी पेशेंट जाने के लिए कम से कम इतने स्रोतों की दुष्टि होना बहुत आवश्यक है। और क्रिटिकल यानी वेरी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उसमें अन्य धातुओं की, उत्तर धातुओं की दुष्टि रहती है। तो इनमें आपको ये समझना बहुत जरूरी है हमको कि प्राण, अन्न, उदक है, ये क्या है कि प्राण व स्रोतस ये वायु का स्थान है, अन्न वह ये पित्त का है और उदक वह एक कफ का है, यानी त्रिदोष का सन्निपात है। और रस, रक्त, मांस और मेद धातु की दुष्टि, ये जिनमें है वो पेशेंट क्रिटिकल होने वाले हैं, वो पेशेंट आगे जाके गंभीर होकर एडमिट होने वाले हैं। तो व्याधि का जो मार्ग है वो अभ्यंतर या मध्यम मार्ग की व्याधि है, आमाशय समूह तत्व है। व्याधि की जो अवस्थाएं रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आयुर्वेद का ये यूनिक कंसेप्ट है कि एक ही डिसीज कैसे प्रोग्रेस होता है, जिसमें बताया गया है कि धातुआनुसारी, धातुआश्रयी और धातुगत, ये हम बहुत सारे डिसीजेस में ये देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये धातुआनुसारित्व, धातुआश्रयित्व और धातुगतत्व हमको कहाँ बताया गया है आयुर्वेद में? तो ज्वर की जो चिकित्सा बताई गई है, ज्वर चिकित्सा, उस ज्वर चिकित्सा में इस धातुआनुसारी, धातुआश्रयी और धातुगत चिकित्सा के बारे में हमारे ग्रंथकारों ने बताया है। बिंदु माधव कट्टी नाम के एक वैद्य थे नांदेड़ में, वो निदान में काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम इस कंसेप्ट में किया है। ये कंसेप्ट क्या है मैं आगे जाके कैसा पेशेंट होता है बताऊंगा। उसके साथ शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुसा, यानी जो अवयव उत्पत्ति सिद्धांत है हमारे आयुर्वेद का, वो अवयवों की चिकित्सा के बारे में बहुत इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में किसी एक अवयव की चिकित्सा नहीं बताई गई है, इसलिए हम जो चिकित्सा करेंगे उस वक्त उस धातु का, जिस धातु से वो अवयव बना है, जिसका पोषण होता है, उस धातु की प्रधान रूप से चिकित्सा करनी पड़ती है। इसलिए कोविड-19 के जो पेशेंट है उन पेशेंट्स में जो भी लंग्स है, फुफ्फुस जो होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट ध्यान में रखते हुए शोणित इस धातु का, रक्त धातु का बहुत विचार करना जरूरी है। उसके साथ जो शोणित के गुण है, जो सुश्रुताचार्य ने हमें बताया गया है, उन गुणों का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे विसृता है द्रवता, राग, स्पंदता और लघुता, ये पंच महाभूत के 5 गुण है। विसृता ये पृथ्वी महाभूत का गुण है, द्रवता ये द्रव महाभूत का, आप महाभूत का गुण है, राग ये तेज महाभूत का गुण है, स्पंदन जो होता है वो वायु महाभूत का गुण है और लघुता जो है वो आकाश महाभूत का गुण है। तो इन गुणों का ध्यान इन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में हमें रखना चाहिए।
अभी जो भी पेशेंट्स माइल्ड मॉडरेट है उनको ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, लेकिन जो पेशेंट क्रिटिकल हो जाते हैं उनमें एक अलग संप्राप्ति या अलग पैथोजेनेसिस होता है, जिसे एलोपैथी साइंस में साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की संज्ञा दी गई है। अब ये साइटोकाइन स्टॉर्म है क्या? तो साइटोकाइन स्टॉर्म जो है उसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी पे कुछ अटैक करती है, यानी मॉडिफाई हो जाती है। और जो साइटोकाइंस होते हैं उन साइटोकाइंस का सिक्रीशन बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लंग्स में होने लगता है। उसके साथ ये निमोनाइटिस बढ़ जाता है और पेशेंट क्रिटिकल बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। तो ऐसा किधर हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में कुछ व्याधियों में वर्णन किया है क्या? ऐसा कुछ होता है? तो अगर हम देखेंगे कि राजयक्ष्मा इस व्याधि में चरक का सूत्र है, वहां पे ऐसा बताया गया है कि राजयक्ष्मा में एक्चुअली होता है क्या? तर राजयक्ष्मा में श्रोतसाम सन्निरोधाचं रक्तादीनांचं संक्षयात धातुष्मनाम चर्चायत राजयक्ष्मा प्रवर्तते, यानी रस धातुअग्नि मांद्य होने से उत्तरोत्तर धातुओं का धातुअग्नि आहार रस उत्तरोत्तर धातु में नहीं जाता, तो उसके वजह से उत्तरोत्तर धातु है उनका अग्नि प्रदीप्त होता है और वो जो प्राकृत धातु है उसका क्षय करते हैं। और जो भी आहार रस बनता है वो क्या होता है कि रस स्रोतस्य उद्देशु स्वस्थानस्थो विदयते, यानी जो रस आहार रस जो तैयार होके आता है वो विदा ही बनता है और स ऊर्ध्वकाश वेगेन बहु रूपम प्रवर्तते, तो वो कास के जैसे लक्षण बन के राजयक्ष्मा के लक्षण बनाता है। तो ये जो संप्राप्ति है रस स्रोत का धातु अग्निमांद्य, रस धातु अग्निमांद्य इस व्याधि में होता है और विदाहित्व बन जाता है। ये पैथोलॉजी साइटोकाइन स्टॉर्म में होती है और वो आयुर्वेद में चरक संहिता में वर्णित है। इसका भी अंग्रेजी अनुवाद है। तो अभी जो अवस्थाएं आती है हमको ये समझना जरूरी है कि कौन से पेशेंट्स होम क्वारंटाइन रहेंगे ट्रीट होंगे, कौन से पेशेंट्स माइल्ड रहेंगे, कौन से पेशेंट मॉडरेट रहेंगे और कौन से पेशेंट्स क्रिटिकल रहेंगे। इनका जजमेंट आयुर्वेदिक वैद्य को अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि उसका जजमेंट रहेगा तो हम अच्छी तरह से पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो ये तो धातु अनुसारित्व जो व्याधि का होता है, इसमें क्या होता है कि दोष और दुष्यों की समूर्छना होती है, व्याधि प्रकट होता है ना, लेकिन धातु पूरी तरह से दुष्ट नहीं होता है, सिर्फ दोष दुष्यों की समूर्छना होकर व्याधि की प्रकटीकरण होता है, जिसमें ज्वर है और या कास है, ऐसे लक्षण इस कोविड के पेशेंट्स में आते हैं। और ज्वर और कास अध्याय में जो भी औषधियां या चिकित्सा दी गई है उसकी चिकित्सा से इन पेशेंट्स में अच्छी तरह से उन पेशेंट्स में रिलीफ आ जाता है। यानी आपने देखा होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स रहेंगे जो होम क्वारंटाइन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, उनको सिर्फ ज्वर और कास चिकित्सा दे के दवाइयां देने के बाद वो अच्छी तरह से ठीक होते हैं। तो ये होता है धातु अनुसारित्व। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है जहां पे बहुत सारे पेशेंट्स क्रिटिकल होते हैं या सीवियरली इल होते हैं, क्रिटिकल नहीं होते, सीवियरली इल होता है, उन पेशेंट्स में धात्वाश्रयित्व आता है। अब ये धात्वाश्रयित्व की तरफ हमने वर्णन किया है। जो विषम ज्वर की जो भी संप्राप्ति है वो धातु आश्रयित्व की संप्राप्ति है। यानी विषम ज्वर में हमको बताया गया है कि दोष धातुओं में लीन होते हैं और कालादि का बल मिलके वो प्रकुपित होते हैं। जहां पे धातु है वो साम बनती है, लेकिन धातु पूर्ण रूप से विगुण नहीं होता है। धातु साम होती है ये और लेकिन विगुण नहीं होती है। तो उस वक्त जो भी पेशेंट धातु आश्रयित में जाते हैं उनमें कुछ लैब इन्वेस्टिगेशन से, जैसे एलोपैथी कोविड मार्कर बोलता है, वो कोविड मार्कर्स के इन्वेस्टिगेशन रेज होते हैं, यानी जिसमें सीआरपी रेज होता है, डी डाइमर रेज होता है, फेरिटिन या एलडीएच, ये जो कोविड मार्कर्स है ये सब रेज रहते हैं। अब ये आपने देखा होगा कि ये सब कोविड मार्कर्स है वो कहाँ पे मेटाबोलाइज होता है, तो ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है। और आयुर्वेद में भी धात्वाग्नियों का स्थान, पंचमहाभूताग्नि स्थान और जाठराग्नि का एक महत्वपूर्ण स्थान लीवर को बताया गया है। यानी गृहिणी चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन चरक संहिता में किया गया है। तो जो भी रस, रक्त और मांस मेद इन धात्वाग्नियों का जब मांद्य होता है तो ये लेवल्स राइज होने चालू होते हैं, जिसमें कुछ पेशेंट्स में एलडीएच राइज होगा, कुछ पेशेंट में सीआरपी राइज होगा। यानी उसके जो प्रीवियस हेतु से
जो उसने सेवन किए हैं स्रोतोदुष्टि के, उसके अनुसार ये लेवल्स राइज होती है। और हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर जिन रुग्णों में ये लेवल्स राइज हो रही है, उन रुग्णों में वो आगे जाके क्रिटिकल या सीवियर होने वाले हैं, उनका डिसैचुरेशन होने वाला है, उनका निमोनिया बढ़ने वाला है। तो उसके लिए उनके अनुसार चिकित्सा उपक्रम चालू करना जरूरी बन जाता है। तो जो भी धातुआश्रयी का पेशेंट होता है उसमें डिसैचुरेशन ऑफ पेशेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड, मैकेनिकल सपोर्ट, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो पेशेंट बाईपैप या नॉर्मल ऑक्सीजन पे उनको मेंटेन किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट होते हैं वो धातुआश्रयित में आ जाते हैं। इस लेवल में आयुर्वेदिक चिकित्सा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें हम उनके ऑक्सीजन लेवल्स को अच्छी तरह से इंप्रूव करते हैं, उनके जो कोविड मार्कर्स है यानी जो सीआरपी है, एलडीएच है, डी डाइमर है, फेरेटिन है, इन सबको अच्छी तरह से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें एम्बोलिज्म है या कोएगुलोपैथीज है, वो हम बचा सकते हैं। और प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स यानी लीवर है, किडनी है, हार्ट है, जो भी वाइटल्स ऑर्गन्स है उनका प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, जो आयुर्वेदिक की दवाओं से बहुत अच्छी तरह से होता है। उसके साथ मिनिमाइज पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस यानी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी जो पेशेंट्स हमारे आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं उनमें बहुत कम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस दिखने को मिलते हैं। उसके साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम डेथ रेट को एक्चुअल में रिड्यूस कर सकते हैं, यानी जो भी पेशेंट्स अभी आज के दौर में जो डेथ हो रहा है पेशेंट्स का कोविड की वजह से, उनको सिग्निफिकेंटली अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का इंटरवेंशन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ या विदाउट एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम डेथ रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत अच्छी तरह से हम इनमें काम कर सकते हैं। जब धातुओं में विगुणता आ जाती है, अब ये कहाँ पे बताया गया है, तो रसगत होना जो है, रक्तगत होना, ये बताया गया है। ये जो लक्षण है उसमें वेंटिलेटरी सपोर्ट्स या मल्टी ऑर्गन फेल्योर यानी धातुगत जब दोष हो जाते हैं उसमें क्या होता है, धातु भी दोष के जैसा बिहेव करना लगता है। तो जब धातु गतत्व प्राप्त होता है तब पेशेंट्स अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऑर्गन फेल्योर होने के चांसेस होते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट को लिमिटेशन आते थे। लेकिन धात्वाश्रयी अवस्था में अगर पेशेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, बाईपैप पे है, आईसीयू में है और ऑर्गन फेल्योर नहीं है, तो बहुत अच्छी तरह से हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये अवस्थाएं रहती है। अभी जो मेडिसिन हमने यूज किए हैं उस मेडिसिन में जो कॉम्बिनेशन हमने यूज किए हैं उसके लिए जो कोई कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने जो कोविड-1 नाम का फॉर्मुलेशन बनाया था उसमें सुवर्ण भूपति था, ये राजक्षमाधिकार में है। सुवर्ण मालिनी वसंत हम सबको पता है। गिलोय सत्व था, अभ्रक भस्म जिसमें सहस्त्रपुटी अभ्रक या सामान्य अभ्रक जो भी अवेलेबल हो ये हमने यूज किया, और धातुपाचक जो रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, ऐसे जो धातुपाचक है सभी उनका सेम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया। अभी ये जो कॉम्बिनेशन है हमने क्यों बनाया, ये हमने बनाया कि धात्वाग्नि मांद्य जो इस व्याधि में है वो धात्वाग्नि मांद्य क्लियर करने के लिए हमने ये कोविड-1 का फॉर्मुलेशन बनाया। ये 1 ग्राम की मात्रा में नॉर्मली हमने सुबह और शाम दिया, और जिनमें कोविड मार्कर्स IL-6 है या CRP, LDH, डी डाइमर, फेरेटिन बहुत मात्रा में बड़े हैं, उन पेशेंट्स के लिए हमने इनका क्वांटिटी 5 ग्राम पर डे तक रखा है। उसके साथ हमने कुछ अनुपान दिए, उसमें दशमूल कटत्रयादि कषायम और एल कनादि कषायम, ये 2 कषायम है सहस्त्र योग में है, इनका अनुपान दिया। ये प्राणहो स्रोतस में काम करने वाले 2 कषाय है जो वात प्रदान अवस्था में दशमूल कटत्रयम कषायम अच्छी तरह से काम करता है, और कफ प्रदान अवस्था में एल कनादि कषाय अच्छी तरह से काम करता है। तो इन कषायों का अनुपान इस कैप्सूल के साथ हमने दिया। उसके बाद जो कोविड-2 का फॉर्मुलेशन है उसमें ताप्यादि लोह, मुक्तिक कामदोदा या कामदोदा प्लेन, चंद्रकला, वासा, ये महत्वपूर्ण दवाई है, वासा, यष्टि मधु और सारिवा मंजिष्ठा। सारिवा मंजिष्ठा ये पांचपति चिकित्सा में जिंगी सारदी नाम से आता है, इसका हमने इस्तेमाल किया जो रक्त की स्थिरता बनाए रखे, यानी शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुसा है, इसलिए हमने सारिवा मंजिष्ठा इन द्रव्यों को लिया।
और धातुपाचक इनमें ऐड किए। तो ये जो द्रव्य थे तापमेय, ये पित्त अनुबंध पित्त प्राधान्य में काम करने वाले थे, लेकिन शोणित दृष्टि का ध्यान रखते हुए, यानी कोविड-19 में शोणित दृष्टि बहुत प्राधान्य से रूप से होती है, तो उसका ध्यान रखते हुए ये दवाई हमें 2 ग्राम पर डे की मात्रा में हमें बहुत सारे पेशेंट्स में यूज की। उसके साथ हमने बृहत्यादि कषाय, वीरत्रादि कषाय, ये 2 कषाय है जो मूत्रल इस स्वरूप में काम करते हैं, यानी मूत्र विरेचन इस उपक्रम का हमने बहुत सारे पेशेंट्स में इस्तेमाल किया। जो भी दोष पक्व हो जाते हैं वो क्लेद मार्ग से, मूत्र मार्ग से हमने उन पक्व दोषों को निकाला था। इसलिए ये बृहत्यादि और वीरत्रवादी कषाय हमने पेशेंट्स को एडवाइस किए थे। ये तीसरा जो कॉम्बिनेशन था ये बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें कफ प्राधान्य की चिकित्सा की जाती है, यानी सन्निपात अगर है आपके सामने तो सन्निपात को किस तरह से जीता जाता है, इसके लिए 2 सूत्र चरक ने बताए हैं। एक सूत्र ज्वर चिकित्सा में बताया गया है और एक सूत्र है जो वात व्याधि में बताया गया है। जो ज्वर चिकित्सा में सूत्र है उसमें उन्होंने कहा है कि कपस्थानम अनुपूर्व्या सन्निपातम तम जयेत, यानी कपस्थान अनुपूर्व्या ध्यान में रखते हुए कि सन्निपात को जीतना चाहिए। पहला कफ को जीतिए, बाद में पित्त को जीतिए और बाद में वात को जीतिए। उसके लिए द्राक्षादि कषाय, वासागुड़चादि कषाय एक अनुपान दिया, जिसमें हमने ज्वरग्न योग यूज किया। अभी जो ज्वरग्न योग है उसमें लक्ष्मी नारायण रस और गैरिक है, उसके साथ श्वास कुठार रस जो क्लासिकल है, गोरोचनादि गुलिका, ये साउथ में बनती है गोरोचनादि गुलिका, जिसमें गोरोचन है, रुद्राक्ष है और शुंग भस्म है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य उनमें है। ये बेसिकली गोरोचनादि गुलिका छोटे बच्चों में जो निमोनिया होता है उनमें यूज की जाती है। समीर पन्नक, तालिस पत्रादि यानी तालिस आदि चूर्ण और कर्कट श्रृंगी इस वनस्पति का चूर्ण, उसके साथ धातुपाचकों का इस्तेमाल किया। तो ये ड्रग्स हमने लिए थे और ये हम पेशेंट्स को 5, 6 या 8 बार भी देते थे, जैसे उनका न्यूमोनाइटिस है, उनका न्यूमोनाइटिस का लेवल ध्यान में रखते हुए हम ये डोज मैनेज करते थे पेशेंट्स में। तो 1 ग्राम की क्वांटिटी में हम वो मधु के साथ देते थे। उसके साथ द्राक्षादि और वासागुड़चादि ये दोनों कषाय दिए थे। अब ये कषाय क्यों दिए थे? तो जो उष्ण वीर्य की द्रव्य है उनसे रक्त दृष्टि ज्यादा न हो और यकृत इस अवयव का काम अच्छी तरह से मेंटेन रहे, यानी यकृत इस अवयव का बहुत ध्यान इस कोविड-19 के पेशेंट्स में रखना चाहिए, क्योंकि वहां से ही सब संप्राप्तियां शुरू हो जाती है। यानी लंग्स में काम करना ही जरूरी की बात है, लेकिन आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण से जहां से आहार रस जाता है उस आहार रस के तौर पे यकृत इस अवयव का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हमने वासागुड़चादि कषाय का उनके साथ प्रबंधन किया था। जो भी रुद्रामृत सिरप हमने यूज किया पेशेंट्स में, वो हमारा खुद का थोड़ा सा प्रोप्राइटरी मेडिसिन था, उसमें कुछ सब रसायन द्रव्य यूज किए हैं। एक्चुअली ये वायरल फीवर्स बहुत सारे पेशेंट है जिसमें प्लेटलेट काउंट कम वगैरह आता है, उसके लिए हमने ये बनाया था, जिसमें रुद्राक्ष, पिप्पली, तुलसी, हरितकी, शुंठी, गुड़ची, गोखरू, यष्टि, वेखंड, सारिवा, भूमि अम्लकी और हरिद्रा है। ये कुछ रसायन द्रव्य है, इनका उपयोग हमने किया था। कुछ पेशेंट्स में हमने ये हमारे क्लिनिक्स में प्रिवेंटिव के तौर पे जो पेशेंट्स दवाइयां लेते हैं उसमें हम ये रुद्रामृत सिरप का यूज करते हैं। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट है इन द्रव्यों का, ये मैंने आपको बताया कि ये द्रव्य हमने यूज किए। जैसे दशमूल कर्तव्य कषाय, कषाय में हमने बताया कि लंग्स या न्यूमोनिया के लिए हमने ये 2 कषाय यूज किए। लिवर एंड ब्लड डिसऑर्डर्स के लिए वासागुड़चादि, द्राक्षादि यूज किया, और किडनी के जो डिसीज है उनमें वीरत्रादि और बृहत्यादि इन 2 कषायों का एक्सक्रीशन यानी मूत्र विरेचन के तौर पे हमने इस्तेमाल किया। और इस ट्रीटमेंट को हमने, इसी द्रव्यों को हमने बहुत पेशेंट्स में बहुत सारे पेशेंट में सेम कॉम्बिनेशंस यूज किए हैं। जो भी पेशेंट सीरियस बन जाते हैं उनके लिए कुछ सुवर्ण कल्प देने पड़ते हैं। जैसे हमने पहले जब ट्रीटमेंट चालू किया था लास्ट जून में, कुछ पेशेंट्स लेना चालू किया, उस वक्त हम हेमगर्भ पोटली और श्वास का चिंतामणि का इस्तेमाल करते थे। हेमगर्भ पोटली 125 मिलीग्राम ओडी डोज में लेते थे और श्वास का चिंतामणि जो रस है वो 125 मिलीग्राम बीडी लेते थे। लेकिन बाद में जाते जाते बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आने लगे कि जो बाईपैप पे है, सीपैप पे है या वेंटिलेटरी सपोर्ट पे है। उनके लिए जो भी आवरण है तो उस आवरणों का ध्यान में रखकर कुछ हमने द्रव्य उनमें ऐड किए। जैसे पित्तावृत्त उदान की अवस्था है,
जो स्पेसिफिकली प्रिवेंट करने के लिए हमने उसमें सुवर्ण सूतशेखर को ऐड किया। पित्तावृत्तोदान ये अवस्था आती है जब पेशेंट को हार्ट अटैक्स वगैरह आते हैं। बहुत सारे पेशेंट में हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स कोविड में हार्ट अटैक आने के वजह से चले गए। प्राणावृत्त उदान और उदानोत्तर प्राण, ये जो अवस्था है जिसमें कार्डियक अरेस्ट बहुत पेशेंट में आता है, कार्डियक अरेस्ट। तो उस अवस्था को कंट्रोल करने के लिए हमने बाकी के सुवर्ण कल्पों का ऐड किया, जैसे महालक्ष्मी विलास है। कफावृत्त प्राण की अवस्थाओं को ट्रीट करने के लिए त्रैलोक्य चिंतामणि का इस्तेमाल किया। मकर ध्वज का इस्तेमाल इसलिए किया कि हृदय और ओज बलवर्धन हो या प्राणव स्रोतस को बल मिलना चाहिए, इस हिसाब से हमने मकर ध्वज इस द्रव्य का इस्तेमाल किया। तो ये द्रव्य हमने जो भी पेशेंट सीवियर ले लिया, बहुत से क्रिटिकल केसेस पहुंच गए हैं, वहां हमने इन द्रव्यों का कॉम्बिनेशन के साथ ओडी बीडी या टॉइस थ्राइस इस प्रकार से इस्तेमाल किया है। और ये द्रव्य देने के बाद उस अवस्था को हमने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया और उसमें हमने बहुत अच्छे सफल रिजल्ट्स आए। लेकिन ये जो रिजल्ट्स आते हैं सुवर्ण कल्प में, वो क्या है कि अंडरलाइंग पैथोलॉजी जब आपकी ट्रीट जब तक नहीं होती है, तब तक इन द्रव्यों में ऐसा होता है कि द्रव्य इस्तेमाल करने के बाद ऑक्सीजन बढ़ जाता है और फिर उसका ऑक्सीजन थोड़ी देर बाद ड्रॉप होने लगता है। तो उसके लिए अंडरलाइंग जो पैथोलॉजी है वो भी ट्रीट करना जरूरी है। यानी आपने देखा हो कि आयुर्वेदिक वैद्य कुछ दवाई देते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन अच्छा होता है, पेशेंट इंप्रूव होता है। तो बेसिकली अंडरलाइंग पैथोलॉजी जब तक हम ट्रीट नहीं करते हैं, तब तक ये पेशेंट ट्रीट नहीं होते। यानी सिर्फ हम बोलेंगे कि स्वास्थ्य का चिंता में दो और पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो ऐसे तो हर पेशेंट्स में देखने को नहीं मिलता है। तो ये मैनेजमेंट हमने उन पेशेंट्स में की थी। उसके साथ कुछ सत्वावय चिकित्सा, जैसे जनपदोदंश में बताई गई है या ज्वर चिकित्सा में बताई गई है, उस हिसाब से हमने पेशेंट्स की पॉजिटिविटी यानी साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए हमने कुछ मंत्र का इस्तेमाल किया, जिसमें ओम नमः शिवाय नाम का मंत्र था। इसके बारे में भी कुछ रिसर्च हुआ है। 17/4/20 को एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था। उसमें बताया गया है कि वो जो ओम नमः शिवाय नाम का मंत्र है, वो क्या करता है कि इट ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम इन पंचमहाभूता ऑफ द बॉडी। यानी पंचमहाभूत जो है उनमें इक्विलिब्रियम लाना, ये ओम नमः शिवाय मंत्र का काम है। ये मंत्र लगाने से जो पेशेंट्स का फियर होता है वो कम हो जाता है, पॉजिटिविटी उनका बढ़ जाता है और जो भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से बढ़ने लगता है। तो ये बातें इन पेशेंट्स में होती है। ऐसा देखा गया है। ओके, तो ये थे कोविड मैनेजमेंट के बारे में जो भी ट्रीटमेंट्स हमने यूज की थी वो थी। और जो भी पेशेंट को पोस्ट कोविड रहते हैं, यानी पोस्ट कोविड जो भी मैनेजमेंट रहता है, जैसे पेशेंट हमारे पास कुछ डिस्चार्ज होके आते हैं, उनको बोला जाता है कि अभी आप घर जाओ, आपका कोविड का इन्फेक्शन खत्म हुआ है लेकिन लंग में फाइब्रोसिस है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रायः परुष गुण की वृद्धि होती है। अब ये परुष गुण कहाँ पे कहा गया है? तो जो विरुक्षता है, यानी रुक्ष गुण हम सबको पता है, ये रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण वो पेशेंट परुष इस गुण में परिवर्तित होता है, यानी परुष गुण में बढ़ता है और पूरा लंग का द्रवत्व निकल जाके वो फाइब्रोस होता है, कड़क बन जाता है। और जो भी दवाइयां मॉडर्न मेडिसिन के साथ दी जाती है, ये सब दवाइयां दोषों को लीन करने वाली है, यानी ये दवाइयां उन दोषों को बाहर नहीं निकालती, सिर्फ लीन कर देती है। तो लीन करने के वजह से उनमें कुछ हद तक लक्षण दिखाई देते हैं या अन्य व्याधि के लक्षण उनमें आगे जाके निर्माण होते हैं। तो उनकी चिकित्सा पोस्ट कोविड मैनेजमेंट में हमें करनी पड़ती है, जिसमें हमने प्रायः कुष्मांड रसायन अमृत प्राची का इस्तेमाल किया। उसके साथ अभ्यंग पिंड स्वेद बस्ती पंचकर्म कुछ ट्रीटमेंट का इस्तेमाल हमने किया, जिसमें अभ्यंग है, नाड़ी स्वेद है, पिंड स्वेद है। उसके बाद उनका फाइब्रोसिस अच्छे तरह से कम हो गया और उनमें इंप्रूवमेंट है। जैसे हमारे पास ऐसे पेशेंट थे कि उनका ऑक्सीजन लेवल 80% रह रहा था, लेकिन हॉस्पिटल ने उनको डिस्चार्ज दे दिया। उसके बाद हमने पोस्ट कोविड उनको मैनेजमेंट किया और अभी उनका ऑक्सीजन 98-97 है और पूरा उनका पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन चला गया है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस उन पेशेंट्स में आते हैं, उनको ट्रीट किया गया। हम जो भी मॉडर्न मेडिसिन दिए जाते हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि मॉडर्न मेडिसिन आखिर क्यों दिए जाते हैं
और उनका रोल क्या है। तो जो रोल है ऑफ एंटीबायोटिक्स है, हमें सब पता है कि ये सब तो बीमारी है वो वायरल डिसीज की है, तो एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है। तो जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो सेकेंडरी इंफेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। यानी मैंने जब पेशेंट सह्याद्री हॉस्पिटल में काम कर रहा था वहां पे मैंने देखा कि स्वाइन फ्लू के बहुत सारे पेशेंट एडमिट हो रहे थे। उन पेशेंट्स में बहुत सारे पेशेंट्स ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उनकी डेथ हो रही थी। यानी ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिड्यूस करने के लिए उनमें हाई डोज एंटीबायोटिक दिया जाता है। उसके बाद इन्फ्लामेशन कम करने के लिए उनके पास स्टीरॉइड्स रहते हैं, वो स्टीरॉइड कंटिन्यूली वो देते हैं। जो भी एंटीवायरल्स है जिसमें रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, ये एंटीवायरल्स यानी वायरल लोड कम करने के लिए दवाइयां दी जाती है। टोसिलीजुलैब नाम की जो दवाई है वो एक्चुअली एंटी रोमेटिक ड्रग है। जैसे हमने बताया कि रसद धात्वक निमान हम दूर करते हैं, उसी तरह से टोसिलीजुलैब देने से उनका इम्यून रिस्पॉन्स चेंज करने के लिए टोसिलीजुलैब दिया जाता है। प्लाज्मा एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए दी जाती है। जो भी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सीटी है और लैब इन्वेस्टिगेशन, सीटी एक्सरे और लैब इन्वेस्टिगेशन है जिसमें सीआरपी है, एलडीएच है, डी-डाइमर, फेरेटिन, ये जो इन्वेस्टिगेशन से ये की जाती है। और जो मैकेनिकल सपोर्ट्स है जिसमें नॉर्मल ऑक्सीजन सपोर्ट है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ है, विद ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके साथ बाईपैप है, सीपैप है और वेंटिलेटरी सपोर्ट है। तो इन हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन की ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स में की जाती है। तो वी शुड अवेयर व्हाट मॉडर्न मेडिसिन आल्सो गिविंग टू दिस पेशेंट्स। ओके, तो ये सिचुएशन से ये केसेस, एक केस और उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सर भाई अभी टाइम है तो मैं आगे की 2 केसेस लेना चाहूंगा, कुछ समय बचा है हमारे पास। यस सर, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो ये जो केस है वो सेकंड केस है जिसमें जैसे फर्स्ट केस था उस हिसाब से भी सेकंड केस है। सितंबर में ये ट्रीट किया था। ये मेरे दोस्त की मदर है जिसमें कोविड में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। कोविड होने के बाद कोविड के कुछ क्रिटिकल केसेस में कॉम्प्लिकेशंस बताए थे, ऐसे ही केस हो गई। ये जो पेशेंट है उसका सिचुएशन ऐसा था, उनका सीटी स्कोर था 18 और ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका 85 तक ड्रॉप हो गया था और पेशेंट वाज अ डायबिटिक, पेशेंट इज डायबिटिक है ये। और वहां उस वक्त भी सितंबर में जो पीक था, सांगली डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट है, तो उस वक्त वहां पे बेड अवेलेबिलिटी नहीं थी और पेशेंट भी अफोर्डेबल नहीं था। तो पेशेंट अफोर्डेबल नहीं था इसलिए मेरे दोस्त ने बोला कि चल यहाँ पर ही घर ही ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल किया। मैंने बोला कि उसको मेरे को बोला वो 85 तक उसका ऑक्सीजन ड्रॉप है, तो मैंने बोला कि उसको हेमोग्लोबिन आके दे दे। नियर बाय शॉप से जाके वो हेमोग्लोबिन लेके आया। उसने हेमोग्लोबिन और श्वास का चिंतामणि का दवाई दे दिया। तो 1 घंटे के बाद उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 तक बढ़ गया, यानी 93 अप टू 93 तो सैचुरेशन राइजेस। तो मैं बोला कि ट्रीटमेंट इज, पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग, लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। हमने ट्रीटमेंट चालू किया उस पेशेंट्स में। जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट था उस पेशेंट में, उसमें हमने ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जो एक 5 लीटर से O2 उनको चालू था। हेमोग्लोबिन पोटली श्वास का चिंतामणि 125 मिलीग्राम 2 to 3 टाइम्स अ डे। उसके साथ हमने कोविड 1 का फॉर्मुलेशन 2 टाइम्स अ डे, कोविड 2 का फॉर्मुलेशन 2 टाइम्स अ डे एंड कोविड 3 का टाइम टेबल 5 टाइम्स अ डे। यानी इस पेशेंट में हमने 5 टाइम्स अ डे इस इतनी ज्यादा मात्रा में कोविड 3 का इस्तेमाल किया। उसके साथ जो कषाय थे वो कषाय हमने वैसे ही उस पेशेंट्स में दिए। आफ्टर आवर ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट 3 डेज के बाद 3-4 डेज के बाद उसकी लंग्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गई और उसका सैचुरेशन अबव 90 रहने लगा। उसका सैचुरेशन अच्छा था लेकिन उसको वीकनेस बहुत था, गिडीनेस था, इसलिए हमने कुछ लैब रिपीट की। जो लैब 20 तारीख तो उस वक्त उसका बीएसएल था 248, लेकिन उनका क्रिएट बढ़ गया था, यानी 4.38 उनका क्रिएट हो गया था। जो ये भी एलडीएच था वो भी 4.11 था, सीआरपी राइज था 25.6 और एसजीओटी अराउंड 48 था। उस वक्त हमने उस पेशेंट को क्रिएटिन बढ़ने के वजह से वो एकेआई में है, इस एकेआई ने एक्यूट किडनी इंजरी में है, इसके साथ उनको कैथेटराइज किया गया इस हिसाब से। और हमने देखा कि कहाँ पे डायलिसिस सेंटर्स वगैरह अवेलेबल है क्या, तो पूरे सांगली, सतारा, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डायलिसिस सेंटर अवेलेबल नहीं था। पूना में भी सह्याद्री हॉस्पिटल में कुछ डायलिसिस सेंटर अवेलेबल था लेकिन वो पुल भी ऑक्यूपाइड था। तो उस वक्त
हमने सोचा कि चलो हम इसके भी आयुर्वेदिक तरीके से कुछ चिकित्सा शुरू कर देते हैं। तो सांगली में दातार पंचभौतिक का केंद्र है, वहां पे मैंने उनको भेजा कि उनको बोला कि ये द्रव्य लेके आओ वहां से। वहां पे उन्होंने फलत्रिकादि गुगुल, श्वदंष्टादि गुगुल, हरड़ू, अपामार्ग और धातु पाचक, इन सब का मिश्रण करके सेम क्वांटिटी में 1 ग्राम 1 आवरली ऐसा हमने चालू किया। जो भी सुबह 8 बजे उनको कैथेटराइजेशन किया था, दोपहर 2-3 बजे तक दवाइयां लाने को हमको लगा, तो उस वक्त उनको सिर्फ 200 ml यूरिन हुआ था। यानी समझो 20 ml 30 ml के अराउंड यूरिन हो रहा था। तो 100 ml नॉर्मली हमारा यूरिन आउटपुट रहता है पर आवर। तो उसके हिसाब से हमने दवाई चालू की और उसको बोला कि चलो कुछ हॉस्पिटलाइज करने की प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं हुआ। तो शाम तक 9 बजे तक जो पेशेंट था, उस 9 बजे तक उस पेशेंट्स में 700 ml यूरिन आ गया, यानी आवरली 100 ml से यूरिन उनका आने लगा। उसके बाद उन्होंने 2 दिन हमने ऑब्जर्वेशन पे रखा उनको, उसके बाद डिस्चार्ज लिया तो उनका क्रिएटिन ड्रॉप होने लगा। पोटेशियम थोड़ा सा राइज था, इसलिए केबाइन सैचेट नाम के सैचेट आते हैं वो दे दिए, तो उसका पोटेशियम कंट्रोल हो गया। उसके बाद ये ट्रीटमेंट आगे 1 हफ्ता भर चली और इस ट्रीटमेंट के बाद उनका सब क्रिएटिन अच्छा हो गया। उसके साथ कुछ सुवर्ण सूचक स्पेसिफिकली हमने उस पेशेंट्स के लिए बल अच्छा रखने के लिए दिए थे। बाकी कोविड 1, 2, 3 के फॉर्मुलेशंस उस वक्त पेशेंट्स में नहीं थे, सिर्फ कषाय चालू थे उस पेशेंट्स में बाकी के, और ये दवाइयां चालू थी। उसके बाद वो पेशेंट रिकवर हो गया। स्टिल टुडे द पेशेंट इज स्टेबल। उसके बाद उसके 2 लिथोट्रिप्सी के ऑपरेट भी हुए, फिर भी पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये तो सेकंड केस है जहां पे हमने ट्रीट किया। ये जो एकेआई मैनेजमेंट है उसमें कुछ दवाई यूज किए हैं। ये जो 2 पेशेंट है ये सिचुएशनली हमने घर में ट्रीट किए क्रिटिकल। जो भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे की है उसके बारे में 1-2 केसेस में शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ये जो पेशेंट है वो लास्ट ईयर यानी पिछले ठीक 1 साल पहले 9 जून को ये पेशेंट हमने ट्रीटमेंट को लिया था। ये पेशेंट था मेरे एम्प्लॉय की मौसी थी। वो डिसैचुरेटेड थी 80% विदाउट मास्क, उसका ऑक्सीजन रह रहा था 92% तक विद 50 लीटर ऑक्सीजन रह रहा था। वो कोपरखेरणे नाम का यह एरिया है नवी मुंबई में, वहां पे वो पेशेंट एडमिट की गई थी और उसका जो प्रोग्नोसिस था वो पुअर था, यानी उस वक्त तो कुछ प्रोटोकॉल भी नहीं तैयार थे एलोपैथी के पास। तो 80% लंग इन्वॉल्वमेंट, मिनिमल प्लेवरल इफ्यूजन और माइल्ड हिपेटोमेगाली, ऐसा उसका प्रेजेंटेशन था। जो भी एक्सरे है, ये एक्सरे आपको दिखा रहा हूँ। जो एक्सरे है उसमें ऑलमोस्ट लंग इन्वॉल्वमेंट उस पेशेंट में था। व्हेन वी स्टार्टेड आवर ट्रीटमेंट, एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास तो कुछ अभी दवाई नहीं है, आपको कुछ तो ट्राई करना है, ट्राई कर सकते हैं। तो उस वक्त उनको जो प्रिस्क्रिप्शन था उसमें मोनोसेट दिया था, डॉक्सीसाइक्लिन दिया था और ऑक्सीजन मैनेजमेंट एंटासिड के साथ चल रहा था। इतना ही ट्रीटमेंट वो एलोपैथिक डॉक्टर्स उस पेशेंट्स में दे रहे थे। उस वक्त हमने उस पेशेंट्स को ट्रीट किया। जो भी रिपोर्ट्स थे उसमें सीआरपी 4.9 था, बीएसएल 168 था, अदर लैब रिपोर्ट में भी IL-6 1.49 था। यानी 5 दिन हमारे पास जो ट्रीटमेंट हमने दी उसके बाद के ये रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट ऑलमोस्ट उसके नॉर्मल थे। पहले की भी रिपोर्ट्स में बहुत सारे वेरिएशंस नहीं थे, लेकिन पेशेंट के रिपोर्ट नॉर्मल है। जो एक्सरे हमने निकाला आफ्टर आवर ट्रीटमेंट, जो एक्सरे ये राइट लेफ्ट साइड का हमारे पास सामने है, वो पहले का एक्सरे और ये हमारे ट्रीटमेंट के बाद 5 दिन के बाद का एक्सरे, यानी ऑलमोस्ट उनका लंग्स हमारे केस में क्लियर होगा। इस केस में हमने क्या किया कि उसको हर घंटे कोविड 3 का जो फॉर्मुलेशन था, जो कफग्न था, वो हर घंटे उनको 1 ग्राम डोज में दिया और उसके बाद उनको मूत्र विरेचन करने वाले गोखरू काढ़ा और वीरत्रादि कषाय, ये कंटिन्यूअसली उस पेशेंट को लेने को बोला था। उसके वजह से उनका लंग्स में जो भी दोष थे वो सब पक्व हो गए और मूत्र विरेचन से उनको हमने बाहर निकाला। तो झट से उनके एक्सरे में चेंजेस आया और पेशेंट इंप्रूव हो गया और 2 दिन के बाद ये पेशेंट नॉर्मली डिस्चार्ज हो गया। टिल डेट द पेशेंट डोंट हैव एनी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, कुछ भी नहीं है और हेल्दी न्यूज में गांव पे अभी ये पेशेंट्स है। तो उसमें भी हमने हेमगर्भ पोटली यूज किया, श्वास का चिंतामणि 125 मिलीग्राम डोज में यूज किया। हेमगर्भ हमने ओडी यूज किया, श्वास का चिंतामणि बीडी यूज किया था।
कषाय थे तो वो सीवियर थे, जो कोविड 1, 2, 3 के फॉर्मुलेशन थे वो 1 ग्राम 2 ग्राम और कोविड 3 ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। आफ्टर डिस्चार्ज इस पेशेंट को भी अमृत प्राशकृत और कुष्मांड रसायन इन पे ही रखा एंड दैट क्योर्स द पेशेंट। अभी ये जो पेशेंट है ये ऑक्सीजन था, हॉस्पिटलाइज पेशेंट था। अगला जो पेशेंट है ये बाइपैप और हाइफ्लो पे रहने वाले जो पेशेंट है आईसीयू में वो है। एक्चुअली दिस इज एन ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, 47 इयर्स, एमबीबीएस लीडिंग एनेस्थेटिक है वो कराड़ में। डॉक्टर श्रुति है माय फ्रेंड, तो कराड़ में रहते हैं, उनके हस्बैंड है। वो एनेस्थेशिया का काम करते थे, लॉकडाउन पे भी उनको सर्जरी एनेस्थेशिया के असिस्ट करने के लिए जाना पड़ता था और वो नून केस ऑफ डायबिटिक थे 5 इयर्स से। तो पेशेंट वाज डिसैचुरेटेड फीलिंग ब्रेथलेसनेस, तो थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस फील होने की वजह से उन्होंने सीटी कर लिया और घर पे आए तो देखा तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 तक ड्रॉप है। तो तुरंत उनको उनके घर के नजदीक कृष्णा हॉस्पिटल नाम का बड़ा हॉस्पिटल है कराड़ में, वहां पे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। उनको कुछ भी फीवर नहीं था, लेकिन मे भी कुछ दवाइयां लेने की वजह से वो फीवर हाइड हो गया। कुछ भी कोविड के प्री साइन सिम्टम्स नहीं थी, क्या फीवर आ गया, बाकी कुछ सिम्टम्स नहीं थे। सिर्फ अचानक एक दिन ब्रेथलेसनेस महसूस होने लगा और उन्होंने सीटी करिया तो एचआरसीटी में 17 कोर था, कोर एट 5, 70% ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट उस पेशेंट में थी। ये भी पेशेंट 1 सितंबर को एडमिट हो गया था। उनमें सीआरपी रेज था, सीआरपी पॉजिटिव था, डी डायमर 0.9 रेज था, फेरिटिन लेस था और IL-6 106 था। यानी हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से हम ये सब रिपोर्ट्स निकल सके जिसमें IL-6 बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा हुआ है। उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट उनको चालू कर दिया गया जिसमें रेमडेसिविर दिया गया, सोलोमेट्रोल दिया गया, पिप्टाज दिया गया, क्लिक्सेन का इंजेक्शन दे गया और हाई फ्लो मैकेनिकल सपोर्ट पे उनको रखा। ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर अभी आ रही है आवाज। आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ, तो जो भी मैनेजमेंट थी उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट के तौर पे हमने उनको हेमगर्भ, श्वास का चिंतामणि दे दिया था। कुछ दिन के बाद उनको महालक्ष्मी विलास और मकरध्वज भी चालू किया। आफ्टर आवर स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट 2 दिन के बाद, हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद उनका जो एक्सरे निकाला हमने। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? हेलो, आवाज आ रहा है? सर अभी आ रहा है आवाज। हाँ, तो कुछ कमेंट्स आ रहे तो आवाज नहीं आ रहा है इसलिए मैं बात किया। तो जो भी एक्सरे था लास्ट उसमें स्लाइड वो मिस हुआ था। डॉक्टर काइंडली म्यूट योर माइक। डॉक्टर के ईश्वर राव काइंडली म्यूट योर माइक। सर यू कैन कंटिन्यू। सॉरी फॉर द ओके, डिस्टर्बेंस। तो राइट साइड के बेस को उनको बहुत बड़ा पैच था। ये पैच हमारे ट्रीटमेंट के बाद 2 दिन के बाद वो रिमूव हो गया, यानी कम हो गया। तो वो पैच रिमूव होने के बाद उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। नाउ द पेशेंट वाज हैप्पी, बट द पेशेंट ब्रेक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, यानी वो एलोपैथिक कंसल्टेंट थे, उनका शुगर लेवल हायर हो रहा था। मैंने उनको काउंसिल किया कि सर आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। तो 2 दिन उन्होंने हमारी ट्रीटमेंट बंद रखी और बाद में 2 दिन के बाद फिर एक्सरे निकाला तो वो पैच बढ़ गया और वो पैच बढ़ने के बाद सब उनके ट्रीटिंग डॉक्टर से सब घबराने लगे कि द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। पहले 2 दिन तो पेशेंट ने ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड दिया, पैच कम हो गया, अभी पैच बढ़ कैसे गया? तो जैसे प्रीवियस एक्सरे में पैच तो अच्छा कम था, लेकिन
इस एक्सरे में पैच बढ़ गया है, तो उसने हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया था। तो उस वक्त हमने उनको काउंसिल किया कि सर आपको ये ट्रीटमेंट लेना ही जरूरी है और यू हैव टू मस्ट फॉलो अवर ट्रीटमेंट्स। तो उन्होंने एग्री कर दिया कि चलो मैं आपको ट्रीटमेंट्स आपके ये चालू रखता हूँ। तो उसके बाद 9 तारीख के बाद उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट चालू किया। उसके बाद पेशेंट कंसिस्टेंटली ऑन बाइपैप और हाई फ्लो पे था। कम से कम वो पेशेंट 11 दिन बाइपैप और हाई फ्लो पे मेंटेन रहता था। उसमें हमने त्रैलोक्य चिंतामणि 1 OD उसमें ऐड किया था उस ड्रग्स में। एक्सरे का जो पैच था वो स्लाइटली रिड्यूस था, बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जब हमने उनका सीटी किया तो सीटी में उनकी लंग इन्वॉल्वमेंट जो 75% थी वो 25% तक कम आ गई थी। उसके बाद हमने उन पेशेंट सर का विनिंग चालू किया 21 तारीख के बाद। 25-26 तारीख तक उनका धीरे धीरे ऑक्सीजन कम करके द पेशेंट का विनिंग किया और उसके बाद उनको डिस्चार्ज ले लिया गया। आफ्टर डिस्चार्ज हमने उनको लाक्षा सिद्ध क्षीर, अमृत पाशकृत कुष्मान रसायन और अभ्यंग पिंड स्वेद ये ट्रीटमेंट आफ्टर डिस्चार्ज हमने उनको एडवाइस की थी, तो उनके ट्रीटमेंट की गई। तो इस वीडियो में भी उनका एक ओपिनियन है। ये भी वीडियो का आवाज नहीं आता था, ये स्किप कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने जो कहा है वो आपको बताता हूँ। ये जो डॉक्टर्स हैं उनका ऐसा मानना है कि पहले मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चालू किया, मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वहां पे मिला। उसके साथ मैंने मेरी पत्नी के साथ डिस्कस करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चालू किया। उसकी वजह से मेरे में इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी आई। और उस वक्त सितंबर में जो भी पेशेंट्स उस हॉस्पिटल में एडमिट थे जिनका स्कोर डॉक्टर साहब के स्कोर से भी कम था, उनकी डेथ हो गई। लेकिन सर सर्वाइव हो गए। जो भी उनके रेसिडेंट एनेस्थेसिया के रेसिडेंट डॉक्टर्स थे, जो भी कंसल्टेंट ट्रीटिंग थे, वो बोले कि दिस इज एन मिरेकल। हमें हम ये बता नहीं सकते कि ऐसे कैसे हुआ, है ना, आप बच गए, दिस इज एन मिरेकल। तो उनको हमने बताया कि सर ऐसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ एड ऑन इफेक्ट में हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू किया, तो उसकी वजह से ये सर्वाइव हो गया। सर ने भी माना कि इस द्रव्यों का, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मेरे को अच्छी तरह से इस्तेमाल हुआ। उसके बाद सर को कुछ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं दिखने को मिले। उनको स्टीरॉयड बहुत दिया गया था, फिर भी उनमें पोस्ट कोविड कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिखे नहीं। 15 डेज के बाद वो ट्रैकिंग करके आए, 1 महीने के बाद वो 30 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए, फिर भी उनको कुछ भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए। इतनी अच्छी तरह से उनकी लंग्स जो भी थी वो हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हो गई थी। तो ये दिस इज एन ओपिनियन ऑफ वन एनेस्थेटिक डॉक्टर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्रिटिकल पेशेंट्स मैनेजमेंट एंड दिस इज द टाइम टू स्टैंड फॉर नेशन। अभी हमें आयुर्वेदिक वैद्यों की जिम्मेदारियां है। जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उनको अभी स्टैंड होना जरूरी है। और जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स से लेके होम क्वारंटाइन पेशेंट्स के लेके माइल्ड मॉडरेट सभी पेशेंट्स में हमें अच्छी तरह से योगदान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो टाइम है उसमें ये सिचुएशन है कि कोई भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो भी जा रहा है, किया जा रहा है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। तो आयुर्वेदिक फिजिशियन के तौर पे हमें ये ध्यान में रखना जरूरी है, जब तक कोई भी अच्छा प्रोटोकॉल नहीं आता है तब तक हम हमारे लोगों को बचाने में सहायता करें। तो ये ई प्लेटफॉर्म के बारे तौर पे थ्रू मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि आप सभी ना सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केस ट्रीट करें, आप सभी सीवियरली इल और क्रिटिकल पेशेंट्स में भी आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक चिकित्सा के तौर पर कोविड की ट्रीटमेंट बहुत आसान बन जाती है, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी कोविड की पैथोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी तरह से मेडिसिन और चिकित्साएं उपलब्ध है। सो दिस इज एन गोल्डन ट्रायंगल। हम उनको गोल्डन ट्रायंगल नाम देते हैं, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद एंड स्पिरिचुअलिटी। इस हिसाब से हमने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं एंड वी आर ट्रीटिंग दिस पेशेंट्स, लॉट ऑफ पेशेंट्स, एंड वी आर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। तो इस प्रकार ये कुछ मेरे अनुभव मैंने आपके सामने रखे हैं। तो कुछ भी क्वेश्चंस आपके हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir, for your wonderful lecture on COVID management through Ayurveda.
Sir, we will wait for a minute and then start the question answer session. Hello, sir. Am I Yes. audible? Yes. Can we start, sir? Yes. First question is from Dr. Rupa Dufare. Sir, please explain the treatment in children below 10 years for COVID positive and also about the post-COVID symptoms like MIS in children's. ओके अभी जो ऐसा बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी और उसमें बच्चे बहुत ज्यादा तौर पे अफेक्ट हो जाएंगे, यानी जो म्यूटेशंस हो रहा है कोविड वायरस में उसके हिसाब से ये होगा। तो आपको ये बात इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे स्वाइन फ्लू था 2009 में आया हुआ, उस वक्त जो स्वाइन फ्लू के जो पेशेंट्स थे वो स्वाइन फ्लू बच्चों को भी हो रहा था, यानी 2 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे भी स्वाइन फ्लू की गिरफ्त में आ रहे थे और वो उनकी डेथ भी हो रही थी। फॉर्चुनेटली कोविड में ऐसा नहीं हो रहा है, एक ये सम सॉर्ट ऑफ फॉर्चुनेट बात है, लेकिन बच्चों में उनका कैसा विचार करना चाहिए इस बारे में थोड़ा सा मैं मेरा कुछ विचार आपके सामने रखता हूँ। जो भी स्वाइन फ्लू था वो उसका दोष प्राधान्य था वो कफ प्रधान वातानुबंधी था और कोविड का जो है वो वात प्रधान कफानुबंधी। तो उसके लिए कफ दोष के जो अवस्था है वो कम से कम अफेक्ट रही है, लेकिन अभी उस वायरस के म्यूटेशन की वजह से वो अडाप्ट हो रहा है कि बच्चों में हो रहा है। तो उसके लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो इस पेशेंट्स के बारे में प्रिवेंटिव तौर के बारे में काम कर सकती है और क्यूरेटिव तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे बाल चतुर्भद्र रस है, उसमें जैसे जो भी द्रव्य है वो सब द्रव्य है उनका हम इस्तेमाल इन पेशेंट्स में कर सकते हैं, एज ए प्रिवेंटिव तौर पे हम उनको दे सकते हैं। सुवर्ण प्राशन का भी कुछ बच्चों में इस्तेमाल करने का प्रयास कुछ वैद्य अभी से कर रहे हैं कि सुवर्ण प्राशन को प्रमोट करें, सुवर्ण प्राशन एज अ इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए उनमें इस्तेमाल किया जा सके। उसके साथ बहुत अच्छे कुछ दवाई है जिसमें प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ जाता है, यानी बच्चा कोविड पॉजिटिव आ जाता है 10 साल के अराउंड 8 साल के ऊपर, तो उनको हम बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ, आयुर्वेदिक वनस्पतियों के साथ गोरोषणादि गुलिका का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में कर सकते हैं। जो भी बच्चे रहते हैं वो बच्चे कषाय या काढ़े बहुत ज्यादा पिएंगे नहीं, तो उनको सिरप बेस में जो भी हमारे कल्प है या सिरप बेस में जो भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन रहते हैं, जैसे स्वासोनिल है या कंटकारी अवलेह है, इनका इस्तेमाल हम इन पेशेंट्स में कर सकते हैं जो बच्चे इजीली ले सकेंगे। तो उसके साथ बच्चों को गंडूस इस ट्रीटमेंट की या प्रिवेंटिव रिसोर्स की आदत डालनी चाहिए, जिसमें हरिद्रा और लवण का अगर गंडूस कर देंगे तो जो भी क्लेद रहता है बच्चों के या हम सब के
ओरोफेरिंग्स में, तो वो क्लेद कम हो जाता है। तो उसके ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि प्रिवेंटिव तौर पे कोविड 19 के पेशेंट्स जो होते हैं, बच्चे जिनमें पॉजिटिव आएंगे, उनमें हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे रसकल्प थोड़े से इस्तेमाल करने को हमको रिस्ट्रिक्शंस या कुछ कंट्रोल में आएगा, जैसे हम एल्डरली एज में ये सुवर्ण कल्प वगैरह यूज करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कुछ बच्चों में डिसैचुरेटेड हो गया, यानी पेशेंट बच्चे पॉजिटिव आना, अफेक्टेड होना, ये बहुत सेकंड वेव में देखा गया है, लेकिन वो उसके बाद डेथ होना ये बहुत कम दिखने को मिला है। तो ये जो सिंपल ड्रग्स है वो यूज करना चाहिए। प्राणव स्रोतस में बहुत अच्छे वनस्पतियां, जो वनस्पतियां है उनके कॉम्बिनेशंस हमारे क्लिनिक में जो होते हैं, उनका इस्तेमाल हम पेशेंट्स में, छोटे बच्चों में कर सकते हैं। Thank you so much, sir, for your wonderful explanation. We will move on to the next question. The next question is from Dr. Rupa K. Please explain about post-COVID treatment, like severe weakness and severe breathlessness, severe weakness. बेसिकली पोस्ट कोविड जो भी पेशेंट्स आते हैं उनमें एक तो दोषलीन में ले रहते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद वो दोषलीन रहते हैं, तो उसकी वजह से दूसरी व्याधि उत्पन्न करने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, जिसमें अभी म्यूकरमाइकोसिस का आप देखेंगे, या कुछ हार्ट डिसीज के बारे में देखेंगे, कुछ इनको हार्ट अटैक आ गया या अदर टाइप ऑफ मॉडलिटीज आती है। उसमें और एक है कि वीकनेस, यानी धातु दौर्बल्य बहुत बना रहता है। इसके लिए धातु अग्निवर्णन करने के लिए सुवर्णमालिनी वसंत का हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सुवर्णमालिनी वसंत ये सर्वरोगे वसंत कहा गया है कि वसंत ऋतु से वसंत कल्प से धात्वाग्नि अच्छी होती है, तो सुवर्णमालिनी वसंत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकर ध्वज जैसा कल्प है जो बलवर्धक है, यानी शुक्र धातु वर्धक है, लेकिन पूरे बॉडी का, शरीर का बलवर्धन करने के लिए मकर ध्वज का इस्तेमाल हम उन पेशेंट्स में कर सकते हैं। उसके साथ घृतयुक्त अवलेह जो है, वो अवलेह या घृत कल्पना हमें इस पेशेंट्स में इस्तेमाल करनी चाहिए। अग्नि का दौर्बल्य कितना है देख के, अगर अग्नि अच्छा है तो अवलेह कल्पना बहुत अच्छी तरह से इन पेशेंट्स में काम करती है। अगर अवलेह अग्निमांद्य है तो उस वक्त उन पेशेंट्स के लिए असवरिष्ठों का इस्तेमाल, अश्वगंधारिष्ट है वैसे असवरिष्ठों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी लाभदायक रहता है। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में भी ये इसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ पेशेंट अगर को मुस्तादियापन नाम की जो बस्ती है, वो बस्ती क्या शतावरी यदियापन बस्ती है, अगर ऐसी अवस्था है तो उन बस्तियों का भी हम पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। चंदन मलाक्षय तेल से या क्षीरबला तेल से अभ्यंग करना, पिंड स्वेद करना, ये ट्रीटमेंट्स हम पोस्ट कोविड पेशेंट्स में फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लंग फंक्शन कैपेसिटी और जनरल वीकनेस ट्रीट करने को हम कर सकते हैं। Thank you, sir, for the wonderful explanation. The next question is from Dr. Datta Bapardekar. Post-COVID loss of libido, especially in non-diabetic patients. बेसिकली इस पे बहुत कुछ रिसर्च चालू है, रिसर्च भी हो रहा है कि पोस्ट कोविड में लॉस ऑफ लिबिडो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जैसी बातें पेशेंट्स में आती है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कोविड का इन्फेक्शन होता है उसमें हम कौन से धातुओं की दृष्टि ध्यान में रखें। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोविड में शुक्र धातु की भी दृष्टि होती है, यानी कोविड में जिसका धातु वैगुण्य जहां तक पहुंचा है उस हिसाब से जो भी स्रोतो वैगुण्य के जिनमें हेतु है उनमें ये दृष्टियां पाई जाती है। तो उसके लिए उस धातु दृष्टि की जो स्रोतस की चिकित्सा बताई गई है, उस स्रोतस की चिकित्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे अच्छा चिकित्सा सूत्र है, यानी शुक्र व स्रोतस की जो चिकित्सा बताई गई है वो चिकित्सा करने की जरूरत इन पेशेंट्स में है, जिसमें आप जैसे महाकल्याणक घृत का स्नेहपान देके पेशेंट्स का विरेचन करवाए और उसके बाद उनको वृषबस्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। या शुक्र शोधनीय जो गण रहता है
उस शुक्र शोधनीय गण की जो द्रव्य है उनका इस्तेमाल करके हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Thank you, sir. We will move on to next question. Next question is from Dr. Rupa Dufare. Post-COVID redness of eyes, especially in children, is any specific treatment for that? बेसिकली पोस्ट कोविड रेडनेस जो आता है, यानी जो भी रेडनेस आता है वो पित्त दृष्टि से होता है, रक्त दृष्टि से होता है। तो हमें ये रखना चाहिए कि रक्त दृष्टि का ध्यान रखें। जैसे मैंने बताया कि पेशेंट्स कोविड में रक्त दृष्टि प्राधान्य रूप से रहती है, तो उस रक्त दृष्टि की चिकित्सा करनी है। रक्त दृष्टि की अगर चिकित्सा हम ठीक तरह से करेंगे तो ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस उस पेशेंट्स में डेवलप नहीं होते हैं। अगर रक्त दृष्टि की चिकित्सा हम वैसे ही छोड़ देते हैं, रक्त दृष्टि की चिकित्सा नहीं करते हैं, तो उस पेशेंट्स में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। ऐसे अवस्था में आप रक्त प्रसादन करने वाले कषायों का, द्रव्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये लक्षण पूरे निकल जाते हैं। Okay, sir. Thank you so much. Next question is from Dr. Kalyani Ohol. Neurological symptoms like loss of memory, irritable behavior, etc. are seen in post-COVID period. How to tackle it? हमारे पास आयुर्वेदिक वैद्यों के पास कैसा है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स बहुत आते हैं। यानी जैसे सर ने बताया कि शुक्र व श्रुत से लेके रसव व श्रुत से लेके शुक्र व श्रुत तक हर धातुओं में दृष्टि पाई जाती है पेशेंट्स में। तो उसके अनुसार जो भी ऐसे पेशेंट्स है जिनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, उसमें चरक का एक बहुत अच्छा चिकित्सा सूत्र है कि अस्थि मज्जागते वाते बाह्याभ्यंतर स्नेहनम, यानी अस्थि और मज्जागत वात की जो लक्षण होते हैं उनमें बाह्य और अभ्यंतर स्नेहन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में महाकल्याण घृत का स्नेहपान करना, बाह्यता अभ्यंग, क्षीरबला तेल या चंदनमलाक्षरी तेल, महानारायण तेल से अभ्यंग, पिंड श्वेत, शिरोधारा नस से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हद तक वहां पे बस्ती का भी इस्तेमाल आप यापन बस्तियों का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रायः उनमें जरूरी रहता है यानी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए। तो उसके बाद आपको ये व्याधि, ये लक्षण बहुत अच्छी तरह से कम आएंगे। Thank you, sir. Next question is from Dr. Nalima Rastogi. How to treat the post-COVID hair fall? जैसे आपने बताया एक शुक्र का हो गया, एक मज्जा का हो गया, फिर अस्थि व श्रुतस का ये आ गया कि हेयर फॉल हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको अस्थि व श्रुतस का जो चिकित्सा सूत्र है, अस्त्यश्रायणम वाजिनम पंचकर्म भेषजम बस्त्याक्षी तिक्तको पीतानीश, यही यूज करना है। यानी इस पेशेंट्स को जो भी हेयर फॉल हो रहे हैं उस पेशेंट्स में अगर अस्थि धात्वाग्नि का धात्वाग्नि मान दे, यानी हेयर फॉल होता है या शुक्र की दृष्टि होता है, शुक्र धात्वाग्नि का धात्वाग्नि मान दे, मज्जा धातु का धात्वाग्नि मान दे, तो उनको ट्रीट करें। उनके ट्रीट करने के लिए वहां पे आप पहले उनको शोधन दे, यानी शोधन देने के लिए उनका बल पहले बढ़ाए। यानी ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमने किए हैं जिनका बल अच्छा नहीं होता, तो उनको पहला बल बढ़ाने की चिकित्सा दे, उसके बाद उनका शोधन करे और शोधन करने के बाद फिर उनका ब्रूहन करे। यानी ये ऐसी चिकित्सा उनमें करनी जरूरत है। तो हेयर फॉल हो रहा है तो उनको रुक्षणीय द्रव्यों से, यानी हम क्या करते हैं, गुड़ शुंठी हरति की वर्धमान मात्रा में देते हैं, उनका धात्वाग्नि मान ट्रीट करते हैं और उसके बाद स्नेहन उनको यूज करते हैं, तो अच्छे तरीके से उनका हेयर फॉल कम होता है। तो ये जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है उनमें जिस धातु में, जैसे मैंने बताया कि जिस स्रोतस के दृष्टि हेतु उस पेशेंट ने सेवन किए हैं उस धातुओं के कॉम्प्लिकेशंस उन पेशेंट में आएंगे, तो उनको ट्रीट करना जरूरी होता है। Thank you so much, sir. Next question is from Dr. Roshan Baskota. Yes. For post-COVID loss of smell, how can we manage nasya? Which oil to be used? पोस्ट कोविड जो भी नस्य पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा है कि लॉस ऑफ सेंस यानी स्मेल या टेस्ट, ये तो कोविड में बहुत पेशेंट्स में देखा जाता है। उसमें स्मेल तो बहुत दिन तक उन पेशेंट को आता नहीं है। तो बेसिकली ये क्यों नहीं आता है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? तो
जो भी गंध ज्ञान है वो पृथ्वी महाभूत का प्रतिनिधित्व करता है। तो पृथ्वी महाभूत की विकृति को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम लॉस ऑफ स्मेल का ये कर रहे हैं, और लॉस ऑफ टेस्ट के लिए हमें द्रव आप महाभूत का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये दो महाभूतों की प्रायः दृष्टि इस कोविड-19 के पेशेंट्स में रहती है। तो उसके हिसाब से उन महाभूतों की चिकित्सा प्राधान्य रूपेण करनी चाहिए। उस महाभूतों की चिकित्सा करने के बाद, यानी पृथ्वी महाभूत की चिकित्सा क्या करेंगे अब, है ना? तो पृथ्वी महाभूत की चिकित्सा है कि पृथ्वी महाभूत पृथ्वी पाण्यात विरते, ऐसा बताया गया है पांचपदी चिकित्सा में। तो पृथ्वी महाभूत अच्छा बने इसलिए उनको शोधन करने की जरूरत है, और शोधन करने के बाद आप बृहन चिकित्सा यानी नस्य चिकित्सा है, इसका इस्तेमाल उन पेशेंट्स में कर सकते हैं, जिसमें आप पंचेंद्रिय वर्धन नाम का तेल है जो इंद्रिय वर्धन करता है, यानी बहुत सारे नस्य के तेल है, लेकिन इंद्रियों का सेंस ऑर्गन का कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि जो भी हमने पेशेंट्स अभी तक ट्रीट किए हैं उनमें कोई तो बहुत रेयरली पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, और जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हमारे पास आ रहे हैं उनमें भी हम स्रोतों की दृष्टि हेतु की चिकित्सा जो चरक ने बताई है उस चिकित्सा प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ट्रीट करते हैं। जैसे म्यूकोरमाइकोसिस है, बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर बोलते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्या किया जाता है। तो म्यूकोरमाइकोसिस में रक्त दृष्टि धातु प्रदान चिकित्सा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जलों का उपचरण करते हैं, उसके साथ धूपन चिकित्सा करते हैं, उसके साथ उस पेशेंट में कवल चिकित्सा करते हैं, और रक्त दृष्टि कुष्ठ और वात रक्त में जो बताई गई है द्रव्य है उनका इस्तेमाल हम म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स में करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया और उन्होंने उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। यानी जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी कॉम्प्लिकेशन जिस स्रोतस की दृष्टि से है उस स्रोतस की चिकित्सा सूत्र के अनुसार हमें उस व्याधि को कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना है। Thank you so much, sir, for a wonderful explanation. The next question is from Vaidya Aparna Admute. How we treat the COVID patients with comorbid diseases like myasthenia gravis? बेसिकली माइस्थेनिया ग्रेविस का जो डिसीज होता है उसमें ऑलरेडी रेस्पिरेटरी थोड़ा सा फेल्यूर रहता है। मैंने माइस्थेनिया ग्रेविस के भी बहुत सारे पेशेंट्स आईसीयूज में देखे, जिसमें उन पेशेंट्स को प्लाज्मा फेरेसिस नाम का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस ये जो ये डिसीज है जिसमें आयुर्वेद की दृष्टिकोण से मांसगत दोषों की अवस्थाएं होती है। तो मांसगत दोषों की अवस्थाओं को ध्यान में रख के मांस धातु के लिए बल्य चिकित्सा इन पेशेंट्स में इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे माश तेल, महामाश तेल से अभ्यंग करना या माशपिंड स्वेद करना, इन द्रव्यों का इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। यानी मांस धातु की प्रधान रूप से दृष्टि ध्यान में रखते हुए माइस्थेनिया ग्रेविस और कोविड के पेशेंट्स को हमको ट्रीट करना है। उस हिसाब से हमको सुवर्ण कल्पों की योजना करनी पड़ती है। जैसे कुछ द्रव्य है जिसमें मांस धातु के दृष्टि को नष्ट करने वाले और बलवर्धन करने वाली चिकित्सा बताई गई है, जिसमें ऐसा बताया गया है अश्वगंधा है। ऐसे प्रोहन कल्प करने जो मांसों का भी दृष्टि दूर करते हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन पेशेंट्स में। Okay, sir. Thank you so much. Next question is from Dr. Deepali. How to treat post-COVID lung fibrosis? हाँ, पोस्ट कोविड जो लंग फाइब्रोसिस होता है उनके बहुत पेशेंट आते हैं। पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस के जो पेशेंट है उनमें लंग्स फाइब्रोसिस की जो इंटेंसिटी यानी कितना लंग फाइब्रोस है उसके ऊपर उस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देखा जाता है। जैसे कुछ पेशेंट में मैंने बताया कि हमारे पास 75 to 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन रह रहा है ऑन एयर, ऑक्सीजन लेवल है सैचुरेशन का, और उनको पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस है। तो उन पेशेंट्स में हमने त्रैलोक्य चिंतामणि का इस्तेमाल किया। त्रैलोक्य चिंतामणि में हीरक भस्म है, यानी
ऐसा द्रव्य इस्तेमाल करना चाहिए जो ज्यादा लेखन न करे और धातुओं की स्थिरता बनाए रखे, क्योंकि अल्वेओला डैमेज नहीं होने चाहिए। तो त्रैलोक्य चिंतामणि का इस्तेमाल किया। लाक्सा सिद्ध क्षीर यानी उरक क्षेत्र में जो द्रव्य है, उन उरक क्षेत्र में जो द्रव्य है उनका इस्तेमाल किया। उसके साथ बाह्य उपक्रम, सबसे महत्वपूर्ण है बाह्य उपक्रम। उन पेशेंट्स में अभ्यंग, नाड़ी श्वेत, पिंड श्वेत, इनका सातत्यपूर्ण हमें 7, 8, 10 दिन तक उपयोग किया और उसके बाद उनमें धीरे धीरे उनका सैचुरेशन बढ़ के देन दे गॉट नॉर्मल सैचुरेशन लेवल्स। और अमृतप्राश कुष्मांड रसायन ये भी हमने यूज किया, अमृतप्राश कृत उनको कंटिन्यू यूज किया है पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस के पेशेंट में। Thank you so much, sir. Next question is from Dr. Jyoti Motija. If patient is economically not affordable to Swarnakalpa, what alternatives can be given? बेसिकली बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि पेशेंट को सुवर्णकल्प अफोर्ड नहीं हो रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे कि पेशेंट को सुवर्णमालिनी वसंत नहीं अफोर्ड हो रहा है, श्वास का चिंतामणि अफोर्ड हो रहा है ना। तो कुछ द्रव्य है जैसे हेमगर्भ और श्वास का चिंतामणि, उनका यूनिक इस्तेमाल होता है पेशेंट क्रिटिकल है अगर तो ऐसे पेशेंट्स में हमने बहुत सारे पेशेंट्स में एला का इस्तेमाल किया, यानी एला ये जो द्रव्य है उनका हायर क्वांटिटी में इस्तेमाल करा। सीतोपलादी चूर्ण में एला चूर्ण का ज्यादा इस्तेमाल किया, या कुछ वैद्य आर्द्रक, गुड़ और आर्द्रक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन, टू इंप्रूव ऑक्सीजन सैचुरेशन इज नॉट अ थिंग। धात्वाग्नि मांद्य ट्रीट करने के लिए आप बहुत अच्छे द्रव्य है जैसे गिलोय है, गिलोय सत्व का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लघुमालिनी वसंत नाम का कल्प है जिसमें बहुत सारे हाईली कॉस्टली नहीं है, लेकिन रस रक्त धात्वाग्नि का जो मांद्य है वो वहां पे ट्रीट कर सकता है। तो ऐसे कल्पों का आप धात्वाग्नि मांद्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट्स में। लेकिन हेमगर्भ और श्वास का चिंतामणि का थोड़ा सा ऑक्सीजन इंप्रूवमेंट में बहुत इस्तेमाल होता है, उनको सूक्ष्म करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म कल्पना, सूक्ष्म औषधि जो कल्पना है जिसमें आप गिलोय सत्व 10 ग्राम लेके उसमें टैबलेट डाल के वो आपको उनको बार बार दे सकते हैं। तो ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं उस पेशेंट्स में। Thank you so much, sir. Next question is from Dr. Rupa K. What is the treatment for post-vaccination coagulopathy? बेसिकली कोएगुलोपैथी होता क्यों है? आयुर्वेद की दृष्टिकोण से ऐसा कुछ कहाँ पे बताया गया है कि कोएगुलोपैथी है? रक्तपित्त अधिकार में तो कफज ग्रथित रक्त के लक्षण बताए गए हैं, उनकी चिकित्सा बताई गई है। लेकिन आपको ये कोएगुलोपैथी के तौर पे विस्त्रता, द्रवता, राग, स्पंदता, लघुता तथा ये 5 गुणों का ध्यान रखना जरूरी है। 5 गुण जो है पंचमहाभूतों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ब्लड में द्रवता की कमी आ जाती है